کلام خدا میں سے جو تلاوت کی ہے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت، یہ الفاظ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے ہیں۔ اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ راحت اور زندگی کی روٹی، آسمان پر جانے کی راہ، میرے عزیز کوئی اور دوسری راہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے کہا راحت اور زندگی، جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو خداوند یسوع زندگی کا منبع ہے اور دنیا کا نور ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ ہی نہیں ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک امید ہے، نجات کا پیغام ہے، زندگی کا پیغام ہے۔ اور جب نور ظاہر ہوتا ہے تو نور روشنی دیتا ہے، نور راستہ دکھاتا ہے، نور خوف کو دور کرتا ہے، نور اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیز کلام خدا میں اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک لمبا عرصہ جو تاریکی میں گزرا، اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر جب خدا نے ابراہیم سے عہد و پیمان کیا کہ میں یہ ملک تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا، تو وہ کہتا ہے خداوند تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں بے اولاد ہوں، میرا وارث میرا کھانا ساتھ ہوگا۔ تو خدا نے کہا کہ تیرا وارث وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا۔ اور خدا نے ابراہیم سے وہاں پر قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے 3 برس کے جانوروں کی لمٹ دی، پرندے بھی کہا کہ میرے حضور ذبح کر۔ اور ابراہیم نے جب ذبح کیے اور صبح سے شام تک وہ ان کو ہانکتا رہا، اور شام کے وقت اس پر گہری تاریکی چھا گئی، ہولناک تاریکی نے اس پر حملہ کیا، اسے نیند آ گئی۔ خدا نے وہاں پر یہ پیغام دیا کہ یاد کر کہ تیری نسل کے لوگ 400 سال مصر میں رہیں گے، اور پھر میں انہیں وہاں سے نکالوں گا، اور یہ ملک جس کا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے دوں گا۔ میرے عزیز بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ 400 سال کا لمبا پیریڈ جو ان کی زندگی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اسیر میں تھے، خوف میں تھے، ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کلام خدا فرماتا ہے کہ مصری ان سے جبرن بیگار لیتے، جتنی محنت ان سے لیتے ان کو اجرت نہیں دیتے تھے، جتنا کام ان سے لیتے اتنا کھانا نہیں دیتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے اور ان کی طاقت سے بڑھ کر وہ ان سے مشقت لیتے۔ بات یہاں تک ہی نہیں، بلکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی عبرانی پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں مضبوط ہیں، یہ لوگ کبھی ہیں، طاقتور ہیں، یہ اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں مصریوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ بھاگ نہ جائیں، جنگ نہ ہم سے کریں۔ انہوں نے ان کے لیے ایک اور بھاری چھوا تیار کیا، ان کی گردن پر رکھ دیا، اور فرعون نے کہا کہ مصریوں کے
अगर उनकी औरतों के लड़कियां पैदा हो तो वो जीती रहें, और लड़के पैदा हो तो वो मार दिए गए, कत्ल कर दिए जाएं, दरिया में बहा दिए जाएं। फराउन ने उनकी नस्ल कशी करने की कोशिश की। अगरचे वो अपना काम कर रहे हैं, मुशक्कत करते हैं, तो भी जो उनके लिए 2 घंटे का काम था 2 घंटे और बढ़ा दिए गए। अगर उनसे 8 घंटे काम लिया जाता था तो 12 घंटे 16 घंटे उनकी मुशक्कत कर दी गई, वक्त बढ़ा दिया गया, कोड़े मारने लगे, उनको दुख देने लगे। इस्राएली खुदा के असूल आंसू बहाते हैं। ये 400 साल का गुलामी का पीरियड जो है, ये बड़ा दुख में उन्होंने गुजारा है। खुदा के आगे जब आंसू बहाने लगे, जब जवान बेटियां, जब बूढ़े, जब बच्चे, जब औरतें, जब मर्द जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और अपने खुदा के हुजूर आंसू बहा रहे हैं, तो कलामे खुदा में लिखा है कि मदियान के काहन यत्रू का दमाद मूसा जो उसकी भेड़ बकरियों को चराता था, वो उसकी भेड़ बकरियों को हंकारता हुआ खुदा के पहाड़ होरब के करीब पहुंचा और उसने देखा कि एक झाड़ी चल रही है, वो आग लगी हुई है उसके अंदर, लेकिन भस्म नहीं होती। आप माचिस की गाड़ी जलाते हैं, जो आग बढ़ती है पीछे से वो भस्म होती जाती है। आग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, जब वो जलती जाती हैं तो पीछे से भस्म होती जाती है। मूसा देखता है कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। इसके तने से शाहों तक मैं जब से देख रहा हूं शोले निकल रहे हैं, कोई पत्ती भी नहीं जली। हैरान हो गया है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया है। जब उसके करीब जाता है तो आवाज आती है, ऐ मूसा अपनी जूती उतार, जिस जमीन पर तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। मूसा अपनी जूती उतारता है। खुदा कहता है, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मैंने अपने लोगों का रोना देखा है, मैंने उनके आंसू देखे हैं, उनकी आवाज मेरी बारगाहों तक पहुंची है। मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से रिहाई दूं। मेरे अजीज, जब नूर ज़ाहिर होता है, जब नूर चमकता है तो अंधेरा भाग जाता है। जब नूर चमकता है तो फिर रोशनी अंधेरों को भगा देती है। जब नूर निकलता है तो कैदियों के लिए रिहाई का पैगाम होता है। जब नूर निकल है तो असीरों के लिए आजादी का ऐलान होता है। खुदा उस नूर में से आवाज देता है, मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। और खुदा अपने जोरावर बाजू से और बड़ी कुदरत के साथ बनी इस्राएल को मिस्रियों से रिहाई दिलाता है। और फिर हम कलाम खुदा में देखते हैं कि दुनिया पर मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे छाए हुए हैं। हसद का अंधेरा, नफरत का अंधेरा, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। कायन ने हाबिल को कत्ल कर दिया है। बेहयाई, ज़नाकारी, बदकारी, इस कदर तारीकियां छाई हुई हैं। अगरचे खुदा ने इसको खत्म करने के लिए जमीन पर एक बार पानी से खात्मा कर दी हर चीज का।
सदूम और अमूरा के दौर में आग और गंधक से सब कुछ मिलियामेट कर दिया जो उन शहरों में था, तो भी ये अंधेरा इंसानियत के चुगिर्द बढ़ता रहा। ये नफरतों का अंधेरा, हसद का अंधेरा, कत्ल और गारत का अंधेरा, ज़नाकारी और बदकारियों का अंधेरा। और कलाम खुदा में रोमियों का मुसन्नफ, अगर रोमियों का खत उसका पहला बाब उसकी 21 से आप देखें तो लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। उन्होंने ऐसे ऐसे घिनौने काम किए, उनकी औरतों ने मर्दों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से बेहयाई बदकारी के अंधेरे वहां पर छाए हुए थे। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि अगरचे खुदा ने कई बार इंसानियत पर अपना गज़ब नाज़िल किया, कई बार गज़ब नाज़िल करने का ऐलान किया, लेकिन जब लोगों ने तौबा कर ली तो खुदा ने माफ कर दिया। मेरे अजीज, जब हर तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी, कलाम खुदा में लिखा है जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। और मेरे अजीज, कलाम खुदा फरमाता है कि खुदा यीशु इस जमीन पर आया और उसने इंसान बनकर इंसानों के गुनाहों का कफारा दिया। कलाम खुदा में इफ्सियों के खत में लिखा है कि उसने हमारे लिए अपने आप को खुदा की नजर में खुशबू की तरह पेश कर दिया। और फिर यूहन्ना 3 बाब की 16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इंसानियत को जिंदगी देने के लिए खुदा यीशु इस जमीन पर आया। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा यीशु ने इस जमीन पर इन अंधेरों को खत्म करने के लिए, अगर हम यूहन्ना के खत में पढ़े पहले खत के 5वें बाब में, तो वहां पर लिखा है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है और खुदा का बेटा आ गया है जिसने ये ऐलान किया है दुनिया का नूर मैं हूं, जिसके लिए सैकड़ों साल पहले यशायाह ने पेशगोई की कि खुदावंद का मुझ पर है, उसने मुझे वसा किया कि कैदियों के लिए रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। मेरे अजीज, खुदा यीशु ने 3.5 साल इस जमीन पर यही कुछ किया जो लोग अंधेरे में जकड़े हुए थे, असीर में थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, गुनाह की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्हें आजादी दिलाई। कलाम खुदा में हम यूहन्ना रसूल की इंजील के 4 बाब में देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सामरिया के शहर को सोखार के कुएं पर आकर बैठे और एक औरत वहां पानी भरने आई। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं। यीशु ने कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे मांगता है वो कौन है और तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत कहती है खुदावंद
मुझे वो पानी दे ताकि मैं फिर यहाँ पर पानी भरने ना हूं, प्यासी ना हूं। यीशु ने कहा पहले अपने शोहर को साथ ले आ, फिर मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। वो कहती है मैं तो बेशोहर हूं। यीशु ने कहा हाँ तू बेशोहर है, तू 5 कर चुकी है और छठा जिसके पास है वो भी तेरा शोहर नहीं, क्योंकि तू उसके साथ भी वफादार नहीं है। वो कहती है मुझे लगता है तू कोई नबी है। लिखा है कि वो अपना घड़ा छोड़कर अपने शहर में भाग गई और ये ढिंढोरा पीटा, आओ उस आदमी को देखो, मुझे एक शख्स मिल गया है, मुमकिन है कि यही है वो जो दुनिया का नूर है, उसने मेरे अंदर की तारीकी मुझ पर आश्कारा कर दी है। बहुत से लोग ईमान लाए और वो जिंदगी से ममूर हो गए। मेरे शीश खुदा यीशु जो अंधेरे में हैं उन्हें चानन देने के लिए आया है। जो भटक चुके हैं, जो बेराह हो चुके हैं, जो ठेडे खा रहे हैं, जो मारे मारे फिर रहे हैं। एक शायर ने एक पंजाबी का गीत गाया हुआ है और उसमें किस तरह है, ठेडा ना खावे ओ राही जेड़ा चानने चले, जब आवे मसीहा प्यारा तद की। अगर रोशनी में जाएंगे तो फिर ठोकर नहीं लगेगी। एक दफा खुदावंद यीशु सुबह सुबह हैकल में गए, बहुत से लोग उनके चौगिर्द बैठे हुए थे। फकीह फरिश्ती एक जवान औरत को पकड़ कर ले आए और यीशु से कहा ऐ उस्ताद, ऐ रबी, ये औरत आइन फेल के पकड़ी गई है और मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए। खुदावंद यीशु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। कैसे मुमकिन हो सकता कि खुदावंद यीशु शरीयत की मुखालफत करे? जो अल्हाम खुदा ने मूसा को दिया उसकी मुखालफत करे। लिखा है कि खुदावंद यीशु ने जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। वे यीशु पर सवाल करते हैं, सवालों की बौछार करते हैं कि तू हमें कुछ जवाब नहीं देता। यीशु ने खड़े होकर कहा मैं तुम्हें मना नहीं करता कि तुम इस औरत को पत्थर ना मारो। आपने पत्थर उठाए हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले वो पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। यीशु फिर लिखने लगे। वो सब बड़ों से लेकर छोटों तक बारी बारी अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए चले गए। यीशु खड़े होकर देखा तो वो औरत अकेली रह गई। यीशु ने कहा ऐ औरत, किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा खुदावंद नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता। जब तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे अंधेरे खत्म हो गए हैं, फिर तारीकी में ना जाना, फिर अंधेरे में ना जाना, फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। उसने तारीकी में जकड़े हुओं को, गुनाह की कैद में जकड़े हुओं को, मौत की वादी में जकड़े हुए लोगों को, जिन पर पत्थर बरसने वाले थे, माफ कर दिया। कहा फिर गुनाह ना करना। यीशु दुनिया का नूर है। यीशु ने कहा जो मेरी प्यार नहीं करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। एक दिन यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और यरूशलेम से निकलते जब एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी,
और रास्ते पर एक अंधा कपड़ा बिछाकर बैठा हुआ था, भीख मांगता था लोगों से। न जाने कितने अरसे से वो यहां पर बैठा हुआ था और उसका यही काम था। शायद लोगों की जो यीशु के कलाम को सुनकर बियाबान से, झील के किनारे से, दूसरे शहरों से वापस उस रास्ते से गुजरते होंगे तो ये आवाज सुनी होगी, लोगों से ये कलाम सुना होगा, ये बातें करते सुनी होगी कि यीशु ने आज कहा है खड़े होकर, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा। उस अंधे ने भीड़ की आवाज सुनी और ये सुना कि यीशु नासरी जा रहा है। वो जो अंधों की आंखें खोलता है, वो जो लंगड़ों को चलाता है, जिसने आवाज़ें बुलंद कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। यीशु करीब से जब गुजरा तो उसने चलाना शुरू कर दिया, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लोग डांट रहे हैं, चुप कराते हैं। हो सकता है यीशु के शागिर्दों में से या हवारियों में से जो उसके पीछे चलने वाले थे उनमें से, या जो लोग वैसे भीड़ में जा रहे थे उनमें से भी कुछ लोगों ने डांटना शुरू कर दिया। यीशु के कानों में ये भी आवाज जा रही थी, लोग डांट रहे हैं लेकिन वो अंधा भीड़ चला रहा है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसकी आवाज में ये कशिश देखी कि ये चुप होने वाली आवाज नहीं है, ये ईमान लाने वाली आवाज है, ये पैरवी करने वाली आवाज है, ये मेरे पीछे आने वाली आवाज है। तो यीशु खड़े हो गया। जब यीशु ने पीछे देखा, वो जो डांट रहे थे अंधे को कहते हैं ठहर जा बैठे, तेरा काम बन गई, यीशु तुझे बुलाता है। यीशु ने जब उसे बुलाया वो अपना कपड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? वो कहता है रबूनी, मैं चाहता हूं मेरे अंधेरे चले जाए, मुझे नूर मिल जाए, मुझे रोशनी मिल जाए, मुझे जिंदगी का नूर मिल जाए। खुदा यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और उसकी आंखें खुल गई। जोरदार तालियां यीशु के लिए, जिसका ये दावा है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और जब इस अंधे बर्तन भाई ने यीशु की पैरवी की, उस पर ईमान लाया,